Hello friends, this is Dr. Priyanka and I have been running hashtag coronaphobia since few days. There is a kind of panic seen among masses regarding the coronavirus pandemic. कोरोना वायरस महामारी को लेकर जनसमूह भय से ग्रस्त हो चुका है. But from where does that fear come? वो डर आया कहाँ से? Quite obviously, the panic arises from the growing number of deaths, from the growing number of cases, the way it increases exponentially. And this has been reported to you through technology, the COVID 19 applications, through medias and all. ये डर आया है स्टैटिस्टिक्स से. ये डर आया है जो मीडिया के द्वारा और जो टेक्नोलॉजी के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा आपको रोज़ मरने वालों के आंकड़े बताए जाते हैं. रोज़ कन्फर्म केसेस किस रफ्तार से बढ़ रहे हैं ये आंकड़े बताए जाते हैं. ये डर आप में इस स्टैटिस्टिक्स को देखकर आया. हैव यू हर्ड अबाउट द थ्योरी ऑफ हेट्रोसजेशन? क्या आपने कभी थ्योरी ऑफ हेट्रोसजेशन के बारे में सुना है? नहीं सुना तो सुन लीजिए. हेट्रोसजेशन इन मेडिकल साइंस मीन्स suggestion used by one person to influence another. सरल शब्दों में समझिए, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा पहले व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए दिए गए सुझाव या सजेशंस को बोलते हैं हेट्रो सजेशंस. फॉर एग्जाम्पल, pick up the newspaper or turn on the television. Every day you hear dozens of stories that could sow the seeds of futility, fear, worry, anxiety, and impending doom. If you accept them and take them in, these thoughts of fear can cause you to lose the will for life. Choice is up to you. You have within you the power to counteract all these destructive ideas by giving your subconscious mind constructive auto-suggestions. मतलब ऑटो-सजेशन का एक बहुत सीधा सा एग्ज़ाम्पल है कि आप न्यूज़पेपर उठा के बैठ जाइए या टीवी पे न्यूज़ ऑन कर लीजिए, तो रोज़ आपको हज़ारों डराने वाली ऐसी खबरें मिलेंगी जिससे आपके मन में अत्यंत भय एवं शोक पैदा हो जाएगा और आप जीवन के प्रति निराश हो जाएंगे. तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको दूसरों के द्वारा, मीडिया के द्वारा इन्फ्लुएंस होकर खुद भयभीत होते रहना है, अपना हार्म करना है, या आपको फैक्ट्स फाइंड करने हैं. So the choice is up to you whether you choose to find the facts and reach to the conclusions, or whether you get influenced by listening to these news channels, these social media platforms, and doom your life in unnecessary fear and panic. So now let us start with the statistics, because this is the point only which creates fear in you. तो चलिए अब हम स्टैटिस्टिक्स से ही शुरू करते हैं, क्योंकि इसी पॉइंट से आप लोगों के अंदर डर पैदा किया जाता है. Do you know the last pandemic of H1N1 which occurred in 2009? You must be remembering
it by the name of swine flu. So at that point of time, I don't think so that there was so much of panic in masses. And the reason is that because at that point of time, statistics were not displayed through the technologies and the various applications, and those were not broadcasted or projected with the medias, whether it be the electronic media or the print media. इससे पहले भी एक महामारी 2009 में H1N1 स्वाइन फ्लू के नाम से आई थी, एंड उस दौरान इतना मासेस में पैनिक नहीं देखा गया था जनसमूह में, क्योंकि उस वक्त ये जो मृत्यु के आंकड़े और रोज़ जो केसेस बढ़ने के आंकड़े जो है किसी एप्लीकेशन के द्वारा, किसी वेबसाइट के द्वारा, सोशल मीडियाज़ पे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इतनी प्रचुर मात्रा में डिस्प्ले नहीं होता था. There is a book, How to Lie with Statistics. So can you believe that? We can lie with statistics. Yes, let's see. You can see that Bill Gates is reading this book, How to Lie with Statistics. Then there is a website of Bill Gates showing that the guide to number games. How to Lie with Statistics is a book written by Darrell Huff in 1954, presenting an introduction to statistics for the general reader, not a statistician. Huff was a journalist who wrote many how-to articles as a freelancer. तो डैरल हफ के द्वारा 1954 में लिखी गई ये बुक है कि स्टैटिस्टिक्स के द्वारा कैसे झूठ बोल सकते हैं. और ये डैरल हफ कोई स्टैटिस्टिशियन नहीं थे, एक जर्नलिस्ट थे, लेकिन ये बहुत से हाउ टू आर्टिकल्स लिखते रहे हैं. और बिल गेट्स ने इस बुक का विवरण अपनी वेबसाइट्स में भी कई बार किया गया है. देखिए इस बुक का हम पढ़ते हैं. इसमें लिखा है, देयर इज़ टेरर इन नंबर्स, राइट्स डैरल हफ, एंड हाउ टू लाई विद स्टैटिस्टिक्स, and nowhere does this terror translate to blind acceptance of authority more than in the slippery world of averages, correlations, graphs, and trends. Huff sought to break through the days that follows the collision of statistics with the human mind. यहाँ पर साफ साफ शब्दों में डैरल हफ ने लिखा है कि नंबर्स में टेरर होता है, नंबर्स में भय होता है, और इतना भय होता है कि उससे जो ह्यूमन का माइंड होता है, जब ह्यूमन का माइंड स्टैटिस्टिक्स से टकराता है तो वह दिग्भ्रमित हो जाता है. द डेज दैट फॉलोज द collision of statistics with the human mind. Further, Mr. Huff went on saying that this book remains relevant as a wake-up call for people unaccustomed to examining the endless flow of numbers pouring from Wall Street, Madison Avenue, and everywhere else. Someone has an axe to grind, a point to prove, or a product to sell. The secret language of statistics, so appealing in a fact-minded culture, is employed to sensationalize, inflate, confuse, and oversimplify, warns Huff. आगे राइटर ने एक चेतावनी भी दी है कि ये जो नंबर्स हैं, ये जो अनअकस्टम्ड लोग होते हैं, मतलब जो इन नंबर्स से घुले मिले नहीं होते हैं, हिले मिले नहीं होते हैं, वो अगर उनको कोई नंबर्स बताता रहता है तो वो इतने कंफ्यूज हो जाते हैं. और ये जो आंकड़ों की रहस्यमय भाषा होती है, इसी के कारण जो अनअकस्टम्ड लोग होते हैं, जो इससे वाकिफ़ नहीं होते हैं आंकड़ों से, वो इसके बहकावे में आ जाते हैं. और जो लोग इन आंकड़ों के द्वारा झूठ बोल के अपने प्रोडक्ट सेल कर देते हैं, डर पैदा कर देते हैं, तो इसके लिए इन्होंने आगे चेतावनी भी दी है. आइए अब आज के आंकड़े ले लेते हैं. आज 21 अप्रैल, समय हो रहा है 3:11. तो आज में जो रिकवर्ड पेशेंट्स हैं, मतलब जो ठीक हो चुके हैं, उनकी संख्या आई है 702. जो आज ही ठीक हुए हैं, आज 702 लोग ठीक हुए हैं. और कितने लोग मरे हैं? 53 लोग मरे हैं. और जो आंकड़ा है कन्फर्म्ड केसेस का आज में वो है 1537. और टोटल आंकड़ा पहुंचा है 20,080. और रिकवर्ड पेशेंट्स का आंकड़ा पहुंचा है 3,975.
और जो डिसीज़ यानी जो टोटल अब तक मर चुके हैं वो है 645। तो आइए देखते हैं अब कि यहाँ पे मृत्यु दर क्या है, मतलब मॉर्टालिटी रेट क्या है। मॉर्टालिटी रेट फाइंड आउट करने के लिए जो न्यूमरेटर में हम रखेंगे जितनी टोटल डेथ्स हैं, यहाँ टोटल डेथ्स हैं 645, और उसको डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर में रखेंगे कंफर्म्ड केसेस। न्यूमरेटर इज़ डिजीज्ड एंड द डिनोमिनेटर इज़ कंफर्म्ड केसेस, दैट इज़ 20,080 एंड मल्टीप्लाई बाय 100 एंड द आउटकम इज़ 3.2%, मतलब मृत्यु दर है 3.2। ये जो मृत्यु दर आई है इसके हिसाब से हमें पता चलता है कि हर 100 आदमी में जो कि इन्फेक्ट होगा, हर जो 100 कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पेशेंट होगा उसमें सिर्फ 3 आदमी का डेथ होगा। अभी तक जो हमने पाया है वो मृत्यु दर 3.2% का अंदाजन यही लगता है कि 100 में से 3 आदमी मरेगा, बाकी स्वस्थ होगा। और आज पूरे दिन भर में 53 डेथ्स हुई हैं कोरोना वायरस पेशेंट्स की। ठीक है, अब आप इस चीज़ को, क्योंकि आम जनता आंकड़े नहीं समझती, मैं आपको बताती हूँ। जब आप डेमोग्राफिक स्टडी करते हैं तो डेथ रेट पर डे होता है, ठीक है। तो डेथ रेट पर डे यहाँ इंडिया में 7 पॉइंट समथिंग था 2019 में, और पॉपुलेशन के हिसाब से यदि हम प्रत्येक दिन की डेथ निकालते हैं तो प्रत्येक दिन की डेथ लगभग 26,000 लोग रोज़ाना इंडिया में मरते हैं, ऐसा पाया गया है। तो आज दिन भर कोरोना वायरस से जो डेथ हुआ है कितना हुआ है? 50। तो अब आप बताइए, जब दिन भर में 26,000 आदमी मरता ही है, ये मैंने आपको आंकड़ा बताया है, तो अब आपका वो 50 डेथ से कुछ पैनिक हटा? हाँ, ये मैं आपको बता रही हूँ सही आंकड़े। तो जो न्यूज़ में आज जिस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, आप जो सुनते हैं आंकड़े इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना हो गया, उससे पैनिक मत होइए। जो कंफर्म केसेस हैं, यदि मैं आपको बताऊं तो टीबी के आंकड़े 2018 में जो टीबी के कंफर्म केसेस गए थे, दोज वर अराउंड 2.1 मिलियन, और जो डेथ्स हुई थी ड्यू टू टीबी, जबकि उसका इलाज मौजूद है, उसके बावजूद भी जो डेथ्स हुई थी दैट वाज more than 4.5 lakhs। एंड टीबी इज़ अ डिज़ीज़ जिसका कि फैटेलिटी 100% होती है अगर ट्रीटमेंट ना हो, बट ये जो फ्लू लाइक इन्फेक्शंस होते हैं ये अपने आप ही इंसान रिकवर हो जाता है, और इसमें कोई भी डेथ सिर्फ कोरोना वायरस से नहीं होती है। इट अकर्स विथ कोमॉर्बिडिटी, किसी और प्रॉब्लम से डेथ हो रही होती है, एंड वो कोरोना पॉजिटिव भी होता है। तो इसलिए यू नीड नॉट टू वरी, कि यू नीड नॉट टू पैनिक। द वे things are projected to you, the reality is very much different। और आज आपने देखा, इसमें मैंने बिल गेट्स का नाम भी लिया, और मैं आगे और पार्ट्स में, या मैंने वॉल्यूम 1 बनाया है, और पार्ट 2 में धीरे धीरे आपको और बातें क्लियर करती जाऊंगी, क्योंकि एक ही वीडियो इतना लंबा बना के ना तो आप लोग आगे शेयर कर पाएंगे और ना ही मैं अपलोड कर पाऊंगी। तो अब बाकी चीज़ मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी। एंड बिफोर लिविंग, प्लीज़ वॉच this video as well, and I think that it will help you in easing your corona phobia. This video is not fake news and is for all the people who are worried about the COVID-19 coronavirus. I did a lot of research and found a remedy to everyone's fear, and the remedy is in numbers, because numbers don't lie. Let's start with how many people are sick right now. Let's assume somehow you got the virus. In the extremely unlikely event of you getting the virus, 81% of the cases are mild, 14% of the cases are moderate, and only 5% of the cases are critical, which means that you are very, very likely to recover from it. And if you somehow get to a critical state, if you compare COVID-19 to SARS, it had a 10% fatality rate, while COVID-19 has only a 2% fatality rate. That is a 5 times smaller number than SARS. Having said all of this, let's dive even deeper into the numbers to make you feel safer. If you consider the age, the possibility of dying goes even lower. The death rate for people under 50 years old is only 0.2%. 0.2%.
90%. Everyone should know these numbers so that they see that the majority of people actually recover from COVID-19. This knowledge is essential so that